May I come in, sir? Yes, Good morning, ma'am. Good morning, sir. please take your seat. What is your name? Linus Ratan. Linus Ratan. So, Linus Ratan ji, your mother tongue is Hindi and language paper is Khota. Yes, ma'am. So, please introduce yourself in Khota. Yes, ma'am. हमार नाम लीनस रतन हके। हम देवघर हमार घर देवघर हके। हम अपन +2 तक के पढ़ाई रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर से करल है। ओकर बाद हम अपन BA ऑनर्स ज्योग्राफी दिल्ली विश्वविद्यालय से करल हके। ओकर बाद हम अपन MA ज्योग्राफी दिल्ली विश्वविद्यालय से करल हके। Okay. What is the meaning of Linus? Ma'am, it is inspired by a saint scientist, Linus Pauling, who received 2 Nobel Prizes in peace and chemistry. Who is the present MLA and MP of your district? Ma'am, present MP is Sri Nishikant Dubey ji, and MLA is Suresh Paswan ji. Sri Suresh Suresh Paswan Paswan ji, ji. MLA. Yes, ma'am. Okay. Are you know about Sarna code? Yes, ma'am. I'm Please tell us. Ma'am, the Adivasis of the Jharkhand demand that in the census column there should be a column of Sarna code in the religion column. Their apprehension is that if in case CA or CA will come, Citizenship Amendment Act, so they will be assembled in Hindu religion, and their customary rights like marriage or the transfer of land will be merged with the Hindu customary. So they demand Sarna code. Ma'am. Okay. Last question from my side. Yes, ma'am. Who is the present DGP of Jharkhand? Ma'am, at present, Sri Anurag Gupta sir is the DGP of Jharkhand. Okay, sir, please continue. So you are from Devghar. Yes, sir. Why the Nolakha temple of Devghar is famous? Sir, I'm not able to recall the name of the queen. She has built it, sir. I'm not. No matter. You can explain without taking or mentioning. I'm not, sir, very sure. You are not aware about the temple I'm aware, but what it is famous for, I'm not. because there is a renovation or the designing of Nolakha temple is going. No Yes, worry. You have opted police service as Yes, your sir. first preference. Yes, sir. And Devghar is apart from their cultural heritage is also known for crimes, and crimes basically related to land. So can you distinguish between organized crime and unorganized crime With respect to land, with respect to crime? I'm just giving reference to it. organized crime would be, sir, some agency or some uh, bigger goons, or they are in hand in gloves with the administration. It can be classified as organized crime, whereas some petty offenders may be classified as unorganized crime. Can you explain the Chenab river's flow in India? Means its Its course. origin, some of its tributaries. Sir, Chenab River basically origins from it is Chenab becomes after the amalgamation of 2 rivers. One is Chandra and Bhaga in Kelang in Himachal Pradesh, and from there it flows Himachal Pradesh, some part of Punjab, and then it goes to Pakistan. Recently, one bridge is being made on that river, so it is At what height the bridge has been constructed? Inaugurated, I think yesterday or day. height. I'm not aware, not sure. Huh? Height. I'm not sure, sir. You're not sure. What are the basic reason of earlier monsoon this year? This time. Sir, the
one of the reason can be said, sir, MJO, median Julian oscillation, sir. It is a type of rotating Walker circulation, we can say, sir. So it has enhanced, or it has further expedited the La Nina effect or El Nino in the region, sir, of Pacific. Can you name the important educational institutions of Jharkhand, and one is being established during National movement. I'm not sure, sir, if it is in during national movement. I know some, but I'm not sure whether it is on because of national movement. Name some famous educational institutions from Devgar. From Devghar? Devghar, sir, one is my school, Ramakrishna Mission Vidyapit, then Hindi Vidyapit. Two are, sir, famous. When was Hindi Vidyapit was established? Yet not sure. Can I ask question in Hindi? Are you happy to Ye- speak in Hindi? Yes, sir. Hindi में comfortable है, Simultaneously? sir. Very good. So tell me, Mr. Gentleman, कि आप मुझे बताएं कि समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक के बीच में सूर्य कहाँ रहता है? With respect to, sir, northern hemisphere के या respect में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है, सर. With respect to Sure. summer solstice. Hmm? Yes, sir. 21st June Yes, sir. is, I think, considered as a summer solstice. Yes, sir. Okay, good. अच्छा ये बताएं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लाइवली डॉक्यूमेंट या यूं कहे जीवंत दस्तावेज Yes, sir. क्यों कहा जाता है भारतीय संविधान को? तब इसको इसलिए कहा जाता है कि सर, हमारे फोर फादर्स ने तो उस टाइम हमारे नेशनल मूवमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया. ये इसमें एमलगेशन है, सर, दोनों चीज का. ये रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है. जैसा सिचुएशन अराइज करेगा, हमें जरूरत पड़ेगा, तो हम अपने पार्लियामेंट से लॉ पास करके उसको उस प्रकार से अमेंड भी कर सकेंगे प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट के लिए. और सम जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सर, वो हम उसको वो चेंज नहीं कर सकेंगे. इसीलिए सर इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया. वेरी गुड. अच्छा, क्या एनजीओ को प्रेशर ग्रुप कहा जा सकता है? किन परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि एनजीओ प्रेशर ग्रुप होगा? सर, एनजीओ को उस परिस्थिति में हम प्रेशर ग्रुप कह सकेंगे जब वो सरकार पे दबाव डाल रही है जन कल्याण का या जन कल्याण के किसी चीज को करवाने के लिए. तो उस केस में हम एनजीओ को कह सकते हैं, सर, कि ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रही है. अच्छा, आप किसी ऐसे देश का नाम बताइए जहां कमजोर सेना है, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व है, फिर भी वह श्रेष्ठ राष्ट्र है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है. कमजोर सेना. कमजोर सेना है, जी सर. कमजोर राजनीतिक नेतृत्व है, फिर भी वो श्रेष्ठ राष्ट्र है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है. श्योर नहीं है, सर. जो नहीं, क्या आपका इशारा यूक्रेन की ओर ज्यादा दिख रहा है? हाँ सर, लेकिन उस उतना ये- कमजोर भी, सर, उसको उस हद तक नहीं कहा जा सकता. मैं कमजोर कई अर्थों में कह रहा हूं, लेकिन किसी एक मामले में सशक्त कह रहा हूं. खैर, कोई बात नहीं. अच्छा, इन दिनों हमारे शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार के लिए प्रशासकों को जिम्मेवार आप मानते हैं या फिर राजनेताओं को मानते हैं? दोनों को, सर. दोनों को मानते हैं. मतलब शासन में जो बैठे हुए शीर्ष पद पर हैं या जहां आप जाएंगे वहां भी करप्शन हावी है और राजनेताओं के भी, वो भी करप्शन में डूबे हुए हैं. आप इस चीज से आश्वस्त हैं? सब नहीं, सर. सब नहीं. चुनिंदा जिनका, सर, नाम आ रहा है, जिनके बारे में ये एस्टेब्लिश्ड हो गया है फैक्ट, उनके रेस्पेक्ट में, सर. मतलब सभी नहीं. नहीं, सर. आपका नाम लिनस है, ये किस भाषा से लिया गया है? ये, सर, इंग्लिश भाषा इसे लिया गया. लिनस, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनानी शब्दावली है? नहीं, सर, जहाँ तक मैं
जानता हूँ सर, वो इंग्लिश नेम ही है। श्योर हैं आप? हाँ, वो यूएसए से ही है सर। आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन किससे मिलता है? सर, दो व्यक्ति मेरे जीवन में है जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। हम्म। एक तो मेरे पिताजी सर, हम्म। और दूसरा सर स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद। जी सर। कुछ बताएंगे दो चार बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में? जी सर, स्वामी विवेकानंद जी सर, उनका तो एक वो जो लाइन है सर, जो हमारे स्कूल में भी मोटो था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। ये सर मेरे हृदय के बहुत करीब है। मतलब ये मेरे को हरदम स्ट्राइव करता है सर मुझे, कि जब तक मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाऊं, हम्म। मैं प्रयत्न करते रहूं। और और वो दोनों चीज़ कहते थे सर। एक कहते थे हमारे बॉडी को मजबूत रखना है, और तब हम उस पर अच्छा ब्रेन हम उस पर डेवलप कर सकते हैं सर। अच्छा, एक और प्रश्न करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली जो घटनाएं हो रही हैं, इसके निवारण हेतु सिर्फ केंद्र सरकार का दायित्व बनता है या राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है? सर, इसके निवारण हेतु तो सारे स्टेक होल्डर का दायित्व है सर। सरकार का भी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारा भी है, सब जन का है सर। उसके लिए कुछ पहल होता देखते हैं आप? यस सर। कौन सी ऐसी आयोजन हो या ऐसी कोई क्रिया हो जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के गंभीर दिखाई देते हैं राज्यों की ओर से, या हमारा राज्य इस दिशा में कभी प्रयत्नशील रहा है? मतलब सर, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर और झारखंड। झारखंड के संदर्भ? झारखंड में सर, अभी हमारा सर 29% फॉरेस्ट है लगभग। हम उसको बढ़ाने की ओर जा रहे हैं। आइडियल 33% है सर। हम्म। तो वो हम एक वो स्टेप है सर। हम्म। और फिर सर, अ, और सर इस पे भी हम ध्यान दे रहे हैं सर, जो हमारे कोयला प्रोडक्शन जो हम बिजली के लिए यूज़ करते हैं सर, उसमें भी सर्टेन टेक्नोलॉजीज लगाया जा रहा है सर, जिससे कि वो जो धुआं है सर, उससे इन्वायरमेंट अपना कम पॉल्यूट हो सर। और फिर केंद्र सरकार का तो सर वो BS6 वेहिकुलर एमिशन वाला तो है ही सर। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न करके छोड़ता हूँ मैं। जी सर। आपके पिता का परिचय है कि वो आईएएस रिटायर्ड है। जी सर। वो कहाँ पदस्थापित थे रिटायरमेंट से पूर्व? अंतिम पदस्थापना वो सर कहाँ थी? स्पेशल सेक्रेटरी थे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, झारखंड सरकार? झारखंड सरकार से। अरुण कुमार रतन। जी सर। प्रमोटी आईएएस है। जी सर, 2009 बैच में उनको मिला था सर। ठीक है, थैंक यू। सर। ठीक है लिनस जी, जैसे। आपने खोटा भाषा रखा है। जी सर। खोटा झारखंड के कितने जिलों में बोली जाती है? एग्जैक्ट तो सर नंबर नहीं याद है, लेकिन लगभग 15-16 जिला में बोला जाता कुछ दो चार जिलों का नाम बताइए। है। गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, पलामू क्षेत्र में भी सर, वाली कोठा। अच्छा, खोटा दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सर पानूजी जी के जन्मदिन के लक्ष्य में मनाया उस जाता दिन और कोई दिवस मनाया जाता है क्या? है। बड़ा दिन सर क्रिसमस का। और कोई डे? अभी तो नहीं याद। अच्छा, कोई बात नहीं। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? हेडलाइंस देख के आए हूँ। तो बताइए, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है आपका, क्योंकि ऑप्शनल जी सर। ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है। एक तो सर वही चेनाब ब्रिज वाला आया था सर, का फॉलो अप न्यूज़ आया था। सारंडा फॉरेस्ट से न्यूज़ आपने पढ़ा है आज? नहीं सर, देखा नहीं। नासा से पढ़ा है? ठंडा। सरसरी निगाहों से आपने हाँ, अभी। यस सर। अच्छा, बताइए कि एक धान की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं क्या क्या है? मतलब मतलब कितना क्लाइमेट और टेम्परेचर? हाँ सॉइल के हाँ। रिस्पेक्ट में ना सर। हाँ जी जी। सर, मिट्टी सर उसका थोड़ा सा क्ले होना चाहिए, कि ताकि वो पानी होल्ड कर सके सर। और तापमान सर उसका वही 25 से 37 डिग्री तक होना चाहिए। मतलब बुआई के टाइम अलग टेम्परेचर है रिक्वायर्ड है, और कटाई के टाइम अलग से। ये बताइए कि देवघर में, जी सर। देवघर का जो गौरीनाथ का मंदिर है, जी सर। तो उसमें कितने मंदिर हैं? अब तो कई बार गए। शायद सर 23। 23 मंदिर है। 23। उसकी क्या पौराणिक कथाएं हैं स्थापना की?
तो माइथोलॉजी में कहा जाता है कि सर रावण उधर से गुजर रहे थे, उनको पेशाब लगा तो उस टाइम वो शिवलिंग रखे, तो फिर वो कंडीशन था कि अगर कहीं पर भी रख दोगे तो फिर शिव जी नहीं जाएंगे, तो उसी के हिसाब से। और वहाँ पर सर एक अच्छी बात है कि वहीं उसी स्थल पे शक्तिपीठ भी है, और कहा जाता है वहाँ पर माँ पार्वती का हृदय भी उसी स्थल पे गिरा है सर। ठीक है मैम। ओके, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू। थैंक यू। आपको फीडबैक फॉर्म मिल फिर जाएगा, वो दिया जाएगा, है उसमें ना? कमेंट हम लोग जी लिखे जी हैं। हाँ, आराम से आप बैठ जाइए, रिलैक्स से। और अब आप बताइए कि आपने क्या फील किया, इंटरव्यू दिया आपने, जी मैम, क्या महसूस किया आपने? मोटा मोटी ठीक है लग रहा है। कोठा में थोड़ा बोलने में मैम थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, खोटा। और आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है, कुछ महसूस हुआ? वो बता देंगे मैम तो। हाँ बिल्कुल आप बताइए। अपने से बताइए, हम लोग उसके बाद हम लोग बताएंगे। हम लोग बिल्कुल, आप बताइए कि आपको क्या लगा। फेशियल एक्सप्रेशन का इस बार तो पता नहीं, एक दो जगह मतलब मिला था कि थोड़ा सा हंसा हंसा हुआ कम चेहरा रहता है। ओके, चलिए अब हम लोग बताते हैं, जी बारी बारी से हम लोग बताएंगे। सबसे पहले आपको अपना बॉडी पोस्चर सही करना जी मैम। है ना? आप 90 डिग्री पे बैठेंगे, फिर पैर को और ऐसे कीजिए पैरेलल, हाँ थोड़ा सा नीचे का जूता और, ओके, ऊपर का थोड़ा सा ये पैरेलल रहना चाहिए, टकना टकना, है ना? हाथ को और आप आगे रखिएगा, हाथ कभी ऐसे बांध के ऐसे नहीं रखना है। अगर आपको इच्छा है तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहले बांध के जब आए रखना थे तो आपने बांध कर रखा था हाथ, है ना? तो हाथ ऐसे को नहीं आप 5-7 ऐसे रखना, बांध ऐसे रहे नहीं रखना। थे, उंगलियां हाँ हिल वैसे रही थी, बांध कर हाँ आपने रखा ऐसे था। नहीं रखना है। उसके बाद तो आप पूरा मूवमेंट ही कर आप रहे थे। टखने थोड़ा सा पीछे जरा सा, हाँ ये 5 उंगलियां बराबर ऐसे रखना है, दिख रहा है ना? तो अब ये गुड है पोस्चर आपका, इसी तरह से आपको बैठना है, और 90 डिग्री पे आपको बैठना अभी है। भी आप लदे हुए लग रहे हैं, थोड़ा सा है पीछे, स्ट्रेट नहीं है। हाँ फिर आगे झुकना नहीं, सपोर्ट लेना है, ऐसे लदना सपोर्ट नहीं। लीजिए, स्ट्रेट बैठिए, है ना? पीछे पूरा बैठे ना चेयर पे, आपका तो हाइट ठीक है। हाँ, ओके, हेयर, आपका ये जो हेयर है, आज थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा था, बहुत हाँ कोशिश तो कर रहे या थे। तो फिर आप कट करवाइए और जी मैम। जेल से सेट करने की कोशिश कीजिए, पहले ही देख लीजिए। सॉक्स आपका ये व्हाइट कलर का नहीं चलेगा, ब्लू या ब्लैक रहेगा। बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, कई बार हम लोगों ने देखा कि सर ने क्वेश्चन किया था, इस आप तरह आगे से आ गए इससे। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा सुनाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो सुनने में दिक्कत हो रहा है। वो इसलिए थोड़ा सा। क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होगा आपका। ये आपको दिखाता है ना, हमने लिखा भी है, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, है ना? ये दिखाता है, कई बार आप सेम क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने पूछा है, एक एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि भारत की राजधानी क्या है, हम्म, तो आप रिपीट किया मैम भारत की राजधानी, है ना? तो हम्म। बोर्ड के द्वारा जैसे सर ने एक क्वेश्चन किया था तो सर से आपने सेम क्वेश्चन रिपीट किया, यह दिखाता है कि आप पूरी तरह से यहाँ नहीं है, कहीं और आपका दिमाग है ना? जी तो क्वेश्चन को सुनना है ध्यान से, गुड लिसनर बनना है, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे होंगे वो लगभग 60+ होंगे, वो लोग तो और धीरे से बोलेंगे, है ना? हम्म, तो जब सुनाई नहीं पड़े मान लीजिए, तो उनसे पूछना है अच्छे तरीके से कि सर मैं इस प्रश्न को सुन नहीं पाया, क्या आप इसे रिपीट करेंगे? पहले सॉरी बोलना है, सॉरी सर मैं इस प्रश्न को सुन नहीं पाया, क्या आप इसे फिर से रिपीट करेंगे? आप जिस भी भाषा में बोले। फिंगर मूवमेंट आपका बहुत होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हम्म। आप ऐसे ऐसे हाथ करके बोलते हैं, तो फिंगर मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है ऐसे, है ना? हैंड पोजीशन ठीक करवा दिया, टंग आपका निकलता है अच्छा। बीच में ना, लिप्स बाहर निकलता है, लिप्स से जी। बाहर निकल जाता है, उस पे कंट्रोल करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट, हम्म, बोर्ड के जो भी मेंबर आपसे प्रश्न पूछते हैं, है ना, हम्म। उनकी तरफ आपको देखना है, आई कांटेक्ट बनाना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है। और बीच बीच में ये जब प्रश्न पूछ ले, आप जब प्रश्नों का जवाब दें, बोर्ड में अन्य मेंबर जो बैठे हुए हैं उनको एक नजर भी देख देख लो। लेना है। और आप क्या प्रत्येक करते क्वेश्चन हैं, में। हाँ प्रत्येक क्वेश्चन में। मतलब पूरा बोर्ड को आपको एंगेज रखना है, इंगेज रखना थोड़ा है सा। प्रत्येक क्वेश्चन में। आप क्या करते हैं, जैसे हम्म, कि आप हमसे बात कर रहे हैं, हम्म, अब सर वहां क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे हो जाते हैं ना, हम्म, बॉडी भी आपका उस हम्म। तरफ मुड़ जाता है, तो बॉडी तो बिल्कुल नहीं मुड़ाना है, आपको ऐसे बैठना है। सपोज कीजिए वहां दीपक भैया हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम्म, हम उनको ऐसे देखेंगे हम्म। ना, फिर वो उनके क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं, समझिए उनको देख रहे हैं, हम्म।
आपको भी देखे उधर भी देखे, समझ गए बातों को। और आंख भी ऊपर नीचे जब आप प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है किसी सिचुएशन पे आधारित या किसी का भी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ध्यान देना है। और अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, सर ने एक क्वेश्चन पूछा तो आपने सीधा कहा नहीं पता है, इतना ही पता है ना, तो आपको पहले सॉरी बोलना है ना, सॉरी सर हम अभी याद नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम जाकर एक बार देख लेंगे। और अगर अनुमान लगाना है तो पहले बोलना है सॉरी सर अभी मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर याद नहीं आ रहा है, अगर आप अनुमति देंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, तो गेस भी करना है परमिशन लेकर। यह आपकी विनम्रता को दर्शाता है, आपका नॉलेज अच्छा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, नॉलेज है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, आपके वॉइस को थोड़ा सा आपको लाउड करने की जरूरत है, थोड़ा सा थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है कि आप टेंशन में दिख रहे हैं, आपके चेहरे से मुस्कुराहट गया है, अभी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तो, है ना। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल कर दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा और अच्छे पद पे होगा, आप डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट है, या मेरा फीडबैक है। सर लोग अपना अपना फीडबैक आपको जैसे देंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लीजिए, हिंदी विद्यापीठ ही 1929 में स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद फिर वहाँ पे जैसे रोहिणी है हाँ 1857 57 रिवॉल्ट। अमानत उसके बाद आदमी हाँ नेशनल मूवमेंट में भी बहुत सारा छिटपुट इवेंट हुआ है। बेसिकली जैसे वो एक रोहिणी कोई वाला ही ना सर हम लोग हाँ का। वो तो 57 में ही है। हाँ फिर और लेटर मतलब उसके बाद के समय में भी थोड़ा बहुत हुआ है। अब झारखंड का बुक देखेंगे तो उसमें जैसे वो जो ग्राउंड है प्रेस क्लब, पुराना प्रेस क्लब वाला, उसका भी सिग्निफिकेंस है मूवमेंट, वो देख लीजिए, बाकी मैं बता ही नहीं सकता। स्पेक्ट से ही रहेगा नहीं कब से। सर वो रिमलेस पहनेंगे सर। हाँ हाँ, सर ये तब तो और आकर्षक लगेगा। ये तो सर पावर अधिक है तो डॉक्टर उस टाइम बोले थे कि बड़ा चश्मा पहनिए। विशेष ठीक है ना, अभी कब समय है 10 दिन मेहनत की। हो जाएगा। ठीक है। कोट पहनना सर उचित रहेगा उसमें। हाँ देखिए वहाँ तो वातानुकूलित रहता ही है कमरा, जी इसीलिए वहाँ वो तो तो वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका ऑरा है ना, हम्म, उसको दर्शाने में वो पैचिंग का काम करता है। कोट जी सर। आपके व्यक्तित्व को उसके लायक अनुकूलता बनाता है, एडेप्टेबिलिटी बनाता है। ये अलग बात है कि गर्मी की है अभी वहाँ, मतलब रूम में तो नहीं दिक्कत होगा सर, बाहर में बाहर में तो आप खोल के रख सकते हो, बाहर में बना हुआ एल शेप का अपना बैठने का व्यवस्था रहेगा, सोफा लगा रहेगा उसमें, वहाँ दिक्कत नहीं है, बच्चे वहाँ भी पहने रहेंगे, लेकिन अंदर आने के बाद कमोबेश ऐसा ही माहौल मिलेगा। जी सर। हाँ, और अनर्गल किसी से भी बातचीत किए बिना अपने आप को केंद्रित रहिए, इस चीज़ें ठीक है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि एक अच्छे संस्थानों से होकर गुजरी है, जी सर। ज्योग्राफी से अपेक्षा उनकी जरूर होगी। अब जैसे पूछ दिया जाएगा कोई अगर कि भाई आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, तो ज्योग्राफी में बॉलीवुड के कुछ गानों के कुछ शब्द, भौगोलिक शब्दावलियां आई हैं, एक आध गानों का मुखड़ा बता दिया जाए, तो ऐसे भी रोचक शब्द आ सकते हैं। बोलिए तो, अगर मैं अभी प्रश्न सूरज को, हुआ मध्यम चांद ढलने एक हो लगा। गया, और भी बहुत सारे जितने, जैसे सागर किनारे जी दिल सर। ये पुकारे, है ना, ये भी तो है प्राकृतिक भौगोलिक संदर्भों से लिया हुआ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो इनको भी चिन्हित करके रखिए, जी सर। क्योंकि वहां पर ऐसा माहौल कुछ बन सकता है। जी सर। जी मास्टर डिग्री करने वालों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता मास्टर डिग्री। स्नातक को प्रतिष्ठा, आपने ऑनर्स किया है ना, बी तो ऑनर्स ऑनर्स को प्रतिष्ठा कहते हैं। खोटा वाले में। नहीं नहीं, ऑनर्स अगर आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स को किया हिंदी है में प्रतिष्ठा बोलते तो उससे हिंदी में अच्छा प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि आपने उसको जिया है, जी सर। आपने उसे सम्मान दिया उस विषय को। हम्म, सामान्य स्नातक अलग होते हैं और डीयू के स्नातक अलग होते हैं, आरयू के स्नातक और डीयू के स्नातक में आसमान जमीन का अंतर है। जी सर। तो आपको ज्योग्राफी घेरेगा, आप कोशिश कीजिएगा कि प्रथम 4.5-5 मिनट ज्योग्राफी से उनको घेर लें, अपना फेवरेट जोन,
तब आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस फिर कंधा चौड़ा होने लगेगा अपने आप। आपको लगेगा कि अब मैं, जैसे सचिन क्या करता है, सचिन क्या किया करते थे, पहले जब बॉल विकेट आता बचाते था हैं। तो पहले वो ऐसे ही करते थे प्रथम 10। वो मेरी उनसे एक बार कभी बात हुई थी, उनका कहना था कि मैं दहाई का आंकड़ा पार करने की कोशिश करता हूँ, और जैसे ही दहाई का आंकड़ा आ जाता है मेरी टारगेट होती है 29। उनका अपना मंत्र है। जब मैं कभी था किसी भूमिका में था, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका वही कहना था। उसके बाद सीधा उनका टारगेट था 50, और 50 के बाद रुकते ही नहीं। रिकॉर्ड है, 65-70 नंबर ला सकते हैं आप, बाकी सबकी ब्लेसिंग काम आएगी। ठीक है ना सर भाई? खोटा वाला कैसा रहा सर? खोलठा का तो आपका ठीक था, वहाँ इंट्रो पूछा जाएगा। अब हम लोग टोन आपका मिल जाएगा। टेम्परामेंट चेक कर रहे थे, थोड़ा सा फ्लो और बढ़ा लीजिए। फ्लो आपका क्यों नहीं पता चलता है, आपकी आवाज काफी धीमी जी है ना? तो आवाज में एक लय होता है, एक ताल होता है ना? हम्म, तो उसे तारतम्यता को आप बनाए रखें। और एक प्रश्न बन सकता है, आपने अंगूठी पहनी है, मैं जी ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसे उतार दीजिएगा, जी मैम, या आपने शायद पन्ना पहना है या कुछ भी है, जी तो मैम, उसके बारे में पूछा जाएगा क्यों पहना है ना? क्या है इसका, क्या साइंटिफिक रीजन है, भारत में कहाँ पाया जाता है, क्या आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं? अगर आप बोलिएगा हाँ है, उस पे क्वेश्चन। अगर आप बोलिएगा नहीं तो फिर क्यों पहना है? अगर आप कहिएगा मम्मी पापा ने कहा है, तो क्वेश्चन बनेगा कि मम्मी पापा जो भी कहेंगे आप मैच्योर है तो आप मान लीजिएगा, है ना? तो एक अच्छा सा उस पे तैयार करिए। ये नहीं है कि आप बोल दीजिए और आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, ये हम लोग समझ गए हमारी बातों को। मैम अभी भी स्माइल रही है आप चेहरे पे। मैम अगर खोटा में परिचय के अलावा फिर कुछ पूछा जाएगा तो उसको कैसे देखिए, डील करना है? परिचय हम आपका परिचय के अलावा भी बहुत कुछ पूछा जाता है, तो आपको उसकी तैयारी क्या करना है। ऐसे नॉर्मली खोटा में परिचय पूछा जाएगा, लेकिन परिचय आपने ठीक से दिया फिर भी फ्लो नहीं लगा। हम अपना इंट्रो ऐसा देना, किसी भी भाषा में दे, हिंदी इंग्लिश, तो हाँ तो खोटा में पूछा जाएगा। हम्म खोटा आपने लिया है, चेक करेंगे कि जरा मैंने आता है कि नहीं। हम्म कि हमारे इंट्रो देने से हम्म हमारा जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित कोई ऐसा चीज है ना? जैसे अभी हम लोगों ने हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछा है आपका, जी मैम, है ना? छूट गया, एक समय सीमा होती है ना, तो उसमें कितना, और पता है कि आप कॉपी तैयार करके आए हैं, जी मैम, क्योंकि आपका नॉलेज हम लोगों ने देख लिया है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछा। तो किसी ऐसे चीज को, मान लीजिए आपको अपनी हॉबी पे बहुत अच्छी पकड़ है ना? उसके बारे में बोले, है ना? अच्छा सा इंटरेस्टिंग अगर हॉबी रहता है, उस पर आपको पकड़ है, तो बोर्ड उसमें फंस जाए। अब बोर्ड जब आपके, मतलब आपने इंट्रो दिया किसी क्वेश्चन में, बोर्ड को इंटरेस्ट आ गया, और अपने साइड आप चाहेंगे तो बोर्ड का आधा समय आप ले लेंगे। हम्म अगर किसी स्टूडेंट को यह गुण आ गया कि वह बोर्ड को अपने तरफ, मान लीजिए कोई आपका फेवरेट, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट से आपका पूछा गया क्वेश्चन, हम्म आपको डिस्ट्रिक्ट पे कमांड नहीं है अच्छे से, है ना? कुछ क्वेश्चन सर ने पूछा, अगर आपको डाटा कुछ इंटरेस्टिंग चीज बोल दिया कि देवघर के बारे में बताया, है ना? देवघर है ना, जी मैम, जी मैम, सांस्कृतिक राजधानी बोला जी मैम, जाता है झारखंड की, देवताओं का द्वार बोला जाता है, बहुत कुछ है ना? हम्म देवताओं की नगरी बोलते हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा चीज बता दे जो उन लोग जानवे नहीं करते हैं। पता करिए, आपके पापा तो आईएएस है, रह चुके हैं, है जी ना? मैम, जी कि कुछ ऐसा आप हमें बताइए। हम अपना इंट्रो, आप पहले उसको हिंदी में तैयार कीजिए इंट्रो, है ना? हम्म या इंग्लिश में तैयार कीजिए, उसके हम्म बाद उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज घुसाइए और उसको खोरठा में लिख के चिपका दीजिए। अभी आपके पास समय है, एकदम बोलने का धारा प्रवाह प्रैक्टिस कीजिए। खोरठा में इंट्रो अच्छा से अगर देना है तो थोड़ा सा इंट्रो और थोड़ा सा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बोलने के लिए सीखिए। कहाँ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या तो फिर बोलेगा किसी दो लेखक का कविता, मतलब कोई जो लेखक है या कवि है उनके बारे में आप बताएं खोरठा में हमें, ये बोल सकता है। उनके द्वारा लिखा गया दो, मतलब कि कोई कविता पढ़ दे, है ना? या कुछ ऐसा कहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना इंट्रो लिख के चिपका लीजिए। खोरठा का जो बुक वगैरह है, कुछ कविता वविता, उसको रीडिंग दीजिए रोज 10 मिनट। रीडिंग दीजिएगा तो जो जवान है ना, जवान पे शब्द चढ़ेगा, है ना? समझ रहे हैं अब बातों मतलब को? मेरा एम है कि मैम हम खोटा डायरेक्शन में बहुत देर अपना इंटरव्यू ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसीलिए नहीं तो है। आपको नहीं ले जाना है ना, हम्म उसमें से वो खींच लेंगे ना। हम्म उसको खोटा में थोड़ी पूछेंगे चीजों को, आप इंट्रो दीजिएगा तो उसमें से खींच अगर लेंगे। फैक्चुअल रहा तो वो तो पढ़ा हुआ है तो वो तो बता हाँ, देंगे। खोरठा में आपको इंट्रो, इंट्रो खोरठा में पूछेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि अपने इंट्रो में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज आप बताइएगा हम्म कि उस चीज के बारे में आपसे इंटरव्यू ले। इंट्रो के अलावा थोड़ा बहुत ही पूछा जाएगा सर खोरठा में। एक मॉक दे रहे थे उसमें बहुत देर बात होने लगा खोटा में।
वहाँ थोड़ा फंस गए थे। नहीं उतना कोठा में सर होता है उतना बातचीत, इंट्रो ही पूछता है, बहुत ज्यादा पूछेगा तो प्रसिद्ध लेखक उनकी क्या उपलब्धि ज्यादा है, ले जाएगा तो बोल दीजिएगा कोठा बुक का नाम। बोलते नहीं है हम, इसको कोल्ड इसलिए पढ़े हैं कि समझते हैं। अधिक जिलों में बोला जाता है, ताकि हम लोगों की बातों को समझ सकें। धीरे धीरे सीख रहे हैं सर, और सीख जाएंगे, हो गया। अब नहीं जानते हैं तो उसमें आप कुछ हमको कर उस रहे हैं डायरेक्शन में जाना ही नहीं है सर। नहीं, हाँ, अगर अगर मैक्सिमम घुस टीचर गया तो बोलिएगा कि सॉरी सर, मतलब अच्छे मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैंने इंग्लिश भी जाना, तो जब मैं यहाँ जेपीएससी की तैयारी करने लगा तो एक विषय के रूप में कोठा था, मैंने देखा कि यहाँ के बहुत जिलों में कोठा बोली जाती है, तो अगर मैं एक ऑफिसर बनूंगा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने इसे पढ़ा है, अच्छी तरह से कोठा को समझता हूँ, और मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा मैं कोठा में बात करने में सक्षम नहीं हूँ, आप हिंदी है बोल दीजिए सीख रहा हूँ सर, सीख जाऊंगा, हो गया। ना, इस ऐसा तरह से थोड़ी है कि अब नहीं घुसाएगा बोलेंगे कोठा नहीं में, एकदम उतना ज्यादा नहीं बोलिए घुसाएगा। कोठे में बोलिए, ऐसा नहीं। क्योंकि उधर मेरा वो स्ट्रांग पॉइंट है ही नहीं, मतलब उधर कभी नहीं, मतलब ले जाना नहीं चाहता। आपका मेन हमको लगता है ज्योग्राफी वोग्राफी ही ज्योग्राफी जाएगा, में जाएगा आपका, ज्यादा ज्योग्राफी चांसेस उधर ही है। और दिल्ली न्यूज यूनिवर्सिटी से है ना, और दिल्ली न्यूज़पेपर यूनिवर्सिटी से पढ़ पूछेगा लीजिएगा। क्वेश्चन। न्यूज़पेपर आप पढ़े नहीं, ज्योग्राफी से बहुत सारे न्यूज आते हैं, जैसे आज सारंडा पे आया है, नासा पे आया है ना, सर ऐसे उस तो। दिन मतलब टाइम मिल क्यूब पाएगा सॉल्व सर, करना तो 9 नहीं बजे हम का अभी तो जल्दी है नहीं ही कर न्यूज, सकते उस थे। दिन तो पढ़ के जाना ही जाना है, मत उस दिन तो सजेस्ट न्यूज़पेपर तो हर हाल में पढ़ कीजिए पाइए। सर, क्योंकि वो क्योंकि लोग अगर भी तो मोबाइल फोन अलाउड रहा तो हम तो अंदर पढ़ ही लेंगे, लेकिन नहीं अलाउ 9 रहता है। बजे के पहले सर। तो आप सुबह पढ़ लीजिए ना, 4-5 बजे तो न्यूज़पेपर घर में आ जाता है। अरे अच्छा, न्यूज पेपर आता है ना, हाँ। आपके घर में तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहिए एक ना दो दिन कि पहले न्यूज का पढ़ पेपर लीजिए। सुनिए, नहीं सुबह जो न्यूज पेपर उस दिन का रहेगा ना, दो तीन को मंगवा लीजिए, सबसे पहले तो प्रभात खबर है, जागरण है, चाहे जो है, और अरे उतना क्या फादर को करना है बोलिए ना, जब आप उसमें से मेन मेन जो हेडिंग है ना, नेशनल इंटरनेशनल और ये, वो क्या करेंगे, वो आपको नोट करके दे देंगे, आप चलते फिरते ब्रश करते ऑटो कार से जाते जाते उसको देख लीजिएगा, वही दिमाग मेन में आ तो गया। वही हेडिंग देखे, बस बस। रांची देखे और इंटरनेशनल नेशनल जो कुछ आया। नेशनल इंटरनेशनल कोई मान लीजिए घटनाक्रम हो गया, जैसे अब हम लोग थोड़ी जानते थे कि उस दिन हमला हम हो लोग के जाएगा, टाइम, मेरे इंटरव्यू टाइम G7 का है, मैं हाँ तो उसका G7 पे मीटिंग होगा 15 से अच्छा से 17 जी। पहले क्या था, ठीक है हम्म, ना, कब G7 में बदला, हम्म, सारा चीज अच्छा से, भारत उसका सदस्य है कि नहीं अभी है। एक डिबेट चल रहा है कि भारत G7 का सदस्य है नहीं, नहीं नहीं। लेकिन कंटिन्यूअसली बुलाया जा रहा है। हाँ हाँ, तो इस पे फिर अभी उसमें पूछा जाएगा कि रसिया को कब, G7 बीच में G8 बन गया था, G8 था जब रसिया था, फिर जी सर। रसिया को बाहर निकालिए, जी फिर से और प्रिपेयर कर लीजिए। और उस दिन जब जाइएगा निकलिएगा रूम से वहां जाने के लिए, तो रास्ते में पेपर खरीद लीजिएगा, देख लीजिएगा, बस चले जाइएगा, और क्या। और और एक दिन सर पहले तक वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा विदेश विदेश उतना नीति भी लोड नहीं लेना G7 है, का है तो पूछ लेगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। ज्यादा भी बोल लीजिएगा तो डिप्रेशन में चले जाइएगा। प्रेशर नहीं लेना है, आप हाँ, प्रेशर में मत रहिए। सर वो एक कोई स्माइलिंग आ नहीं पा रहा है, क्योंकि सिचुएशन वैसा अकर नहीं हो रहा है कि मतलब पूरा मुस्कुरा सके। जो मतलब जो आपका हैबी है, सॉरी ये हॉबी है। कहीं ब्लैक बेल्ट के कारण तो नहीं है, कराटे के कारण है। नहीं वो तो सर स्कूल में है कि कुछ ना कुछ तो लेना है। कब से छोड़े कराटे हैं इसको? 14 में सर, अच्छा, छोड़ 10th दिए। किए, 16 में 12th किए। स्कूल में अच्छा, सिखाया जाता था, मतलब उसके कराटे बाद नहीं किए? नहीं। क्योंकि ये वाला पूरा दिखता है ना फेस पे एकदम एग्रेशन। जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना आपकी लाइफ में हुई हाँ, हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, और आगे क्या अच्छी अच्छी बातें होंगी, है ना, इधर और उसके बारे में मतलब 10 सोचिए। क्वेश्चन 10 आंसर में हमको वही नहीं लग रहा कि किस तरह हंस सकेंगे, वो माहौल नहीं लग रहा हंसना है। नहीं है, थोड़ा सा हंसना फेस नहीं, स्माइली मुस्कुराहट रखना है। अब जो नेचुरल है उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते। वही मुझको लग रहा है। हाँ, तो अरे मत हॉबी जो है कीजिए आपका सॉल्विंग रवि, क्यों ये अभी भी करते हैं क्या? जी सर। वो देखिए इसी कारण है सर। सर। समझे? हाथ सिचुएशन भी है। इसी के कारण। हाथ भी इसी के कारण चल रहा है आपका, और थोड़ा सा स्माइल नहीं आ रहा है, वो हमको भी। सर ऐसे में थोड़ा सा रोबोटिक टाइप फील होता है, तो इसीलिए हम लेकिन रखना ऐसे रखिए, हाँ थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ऐसे भी तो रख सकते हैं। तो मतलब लग रहा है कि हम अपने आप को बांध रहे हैं, थोड़ा सा हाँ तो रोबोटिक टाइप या का तो फील ऐसे रखिए या तो वैसे रखिए, देखिए अब ऐसे। बेस्ट अपना दे दी और 15-20 मिनट देना, तो उसके लिए उतना लोड मत लीजिए। बहुत हम्म, पढ़े हैं, मास्टर्स किए हैं, मेंस निकाले हैं, इतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एजुकेशनल थोड़ा सा बॉडी बैकग्राउंड लैंग्वेज आपका। पे काम कर लीजिए, बस हो हाँ, गया। बॉडी नहीं तो लैंग्वेज हम तो तो एक बोलेंगे चीज। कि बाकी जैसे कुछ अगर नहीं। आपसे पूछा जाए स्कूलिंग, तो बोल दीजिए रामकृष्ण मिशन और पूरा ले जाइए उधर ही, घुसा विवेकानंद दीजिए जी, आरके मिशन परमांश। पे, उधर से विवेकानंद जी पे। क्वेश्चन ही नहीं आया ना सर, फिर तो हाँ, इंट्रो में तो हम बोले, फिर सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन अरे नहीं आया। यहाँ नहीं आया, वहां आ सकता है ना, जी सर। उसको जरूरी भी नहीं प्रिपेयर है ना, कीजिए। वो सब कितना तो मतलब रखे हैं फिर। बस
उसको कीजिए, ज्यादा लोड नहीं लेना है। विवेकानंद जी के बारे में सारा कुछ देख लीजिएगा, पहला जो विश्व धर्म सम्मेलन ठीक में। है, अभी अब एक वो हो सकता है श्रावणी मेला पे भी हाँ चले, अभी है 11 जुलाई अभी से। प्रबंधन बोर्ड में सीएम और कौन कौन मेंबर हैं ये सब देख जी। लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, Thank बहुत you, sir. लोग वेट कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। ये मिल जाएगा।